بلینڈر ٹیوٹوریلز کی سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ٹیوٹوریل بلینڈر 2.59 میں پراپرٹیز ونڈو کے بارے میں ہے۔ اس سکرپٹ کا ترجمہ اور صدا بندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے۔ اس ٹیوٹوریل کو دیکھنے سے ہم سیکھیں گے کہ پراپرٹیز ونڈو کیا ہے، پراپرٹیز ونڈو میں ٹیکسچر پینل کیا ہے، پراپرٹیز ونڈو کے ٹیکسچر پینل میں مختلف سیٹنگز کیا ہیں۔ میں مان کر چلتا ہوں کہ آپ بلینڈر انٹرفیس کے بنیادی عناصر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر نہیں تو برائے مہربانی ہمارا گزشتہ ٹیوٹوریل بیسک ڈسکرپشن آف دا بلینڈر انٹرفیس دیکھیں۔ پراپرٹیز ونڈو ہماری سکرین کے دائیں حصے پر واقع ہے۔ ہم پراپرٹیز ونڈو کے کچھ پینلز اور ان کی ترتیبات یا سیٹنگز کو گزشتہ ٹیوٹوریل میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ پراپرٹیز ونڈو کے اگلے پینلز کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہمیں اچھے سے نظر آنے اور سمجھنے کے لیے پراپرٹیز ونڈو کا سائز تبدیل کرنا چاہیے۔ پراپرٹیز ونڈو کے بائیں حصے پر بایاں کلک کریں، پکڑ کر رکھیں اور بائیں طرف ڈریگ کریں۔ اب ہم پراپرٹیز ونڈو میں آپشنز زیادہ واضح دیکھ سکتے ہیں۔ بلینڈر ونڈو کا سائز کیسے تبدیل کریں یہ سیکھنے کے لیے ہمارا ٹیوٹوریل ہاؤ ٹو چینج ونڈو ٹائپس ان بلینڈر دیکھیں۔ پراپرٹیز ونڈو کی سب سے اوپری رو پر جائیں۔ پراپرٹیز ونڈو کے سب سے اوپری رو پر چیکرڈ سکوائر آئیکن پر بایاں کلک کریں۔ یہ ٹیکسچر پینل ہے۔ یہاں ہم ایکٹیو یعنی فعال آبجیکٹ کے فعال مٹیریل میں ایک ٹیکسچر شامل کر سکتے ہیں۔ ٹیکسچر آئیکن کے ٹھیک نیچے ہم ظاہر لنکس دیکھ سکتے ہیں۔ کیوب ٹو وائٹ ٹو ٹیکسٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ فعال آبجیکٹ کیوب ہے۔ وائٹ کیوب کا فعال مٹیریل ہے۔ ٹیکسٹ سفید مٹیریل کا فعال ٹیکسچر ہے۔ یہاں تین طرح کے ٹیکسچرز ہیں: میٹیریل ٹیکسچرز، ورلڈ ٹیکسچرز اور برش ٹیکسچرز۔ اس ٹیوٹوریل میں ہم میٹیریل ٹیکسچرز دیکھیں گے۔ ورلڈ ٹیکسچرز اور برش ٹیکسچرز اگلے ٹیوٹوریلز میں دیکھیں گے۔ یہ ٹیکسچر سلاٹ باکس ہے۔ ڈیفالٹ طور پر فعال میٹیریل کے لیے ایک ٹیکسچر انیبلڈ یعنی لاگو ہے۔ یہ نیلے میں نمایاں ہے۔ نمایاں ٹیکسچر سے دور دائیں طرف چیک باکس پر بایاں کلک کریں۔ اب ٹیکسچر ڈسیبل یعنی غیر فعال ہو گیا ہے۔ چیک باکس پر دوبارہ بایاں کلک کریں، یہ پھر سے انیبل ہو گیا ہے۔ چیک باکس کے آگے ایک ورٹیکل سکرول بار ہے۔ ورٹیکل سکرول پر بایاں کلک کریں اور پکڑ کر رکھیں۔ اپنا ماؤس نیچے کی طرف ڈریگ کریں۔ اب موجودہ مٹیریل کے لیے آپ تمام دستیاب ٹیکسچر سلاٹس دیکھ سکتے ہیں۔ ہر سلاٹ ایک چیکرڈ سکوائر کے طور پر ظاہر ہے۔ فعال ٹیکسچر پر واپس سکرول کریں۔ ٹیکسچر سلاٹ باکس میں ٹیکسچرز کو اوپر اور نیچے کھسکانے کے لیے اپ اور ڈاؤن ایروز کا استعمال کریں۔ ڈاؤن ایرو پر بایاں کلک کریں۔ فعال ٹیکسچر دوسرے ٹیکسچر سلاٹ پر آ جاتا ہے۔ اپ ایرو پر بایاں کلک کریں۔ فعال ٹیکسچر پہلے سلاٹ پر واپس چلا جاتا ہے۔ اپ اور ڈاؤن ایروز کے نیچے ایک اور بلیک ڈاؤن ایرو ہے۔ بلیک ڈاؤن ایرو پر بایاں کلک کریں۔ ایک مینیو ظاہر ہوتا ہے۔ کاپی ٹیکسچر سلاٹ سیٹنگز پر بایاں کلک کریں۔ باکس میں دوسرے ٹیکسچر سلاٹ پر بایاں کلک کریں۔ یہ نیلے رنگ میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ بلیک ڈاؤن ایرو پر پھر سے بایاں کلک کریں۔ پیسٹ ٹیکسچر سلاٹ سیٹنگز پر بایاں کلک کریں۔ پہلے ٹیکسچر سیٹنگز کی طرح دوسرے ٹیکسچر سلاٹ میں ایک نیا ٹیکسچر ظاہر ہوتا ہے۔
स्लॉट बॉक्स के नीचे टेक्सचर नेम बार के दाएं तरफ क्रॉस निशान पर बायां क्लिक करें। दूसरा टेक्सचर हट गया है, साथ ही इसकी सेटिंग्स भी चली गई हैं। प्लस आइकन के साथ एक न्यू बटन जाहिर होता है। न्यू बटन पर बायां क्लिक करें। दूसरे टेक्सचर स्लॉट में एक नया टेक्सचर जाहिर होता है। तो एक नया टेक्सचर शामिल करने का ये एक और तरीका है। नोट करें कि किस तरह दूसरे टेक्सचर के बाएं तरफ चेकर्ड स्क्वायर मुख्तलिफ तस्वीर में बदल गया है। नीचे एक प्रीव्यू विंडो जाहिर होती है। ये फ़आल टेक्सचर का प्रीव्यू जाहिर करती है। इस टेक्सचर को फिर से नाम दें। स्लॉट बॉक्स के नीचे टेक्सचर नेम बार पर बायां क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर बम्प लिखें और एंटर दबाएं। नेम बार के बाएं तरफ चेकर्ड स्क्वायर पर बायां क्लिक करें। ये टेक्सचर मेन्यू है। सीन में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम टेक्सचर्स यहाँ दर्ज हैं। नेम बार के नीचे टाइप बार है। डिफ़ॉल्ट तौर पर तमाम नए टेक्सचर्स क्लाउड टेक्सचर जाहिर करते हैं। क्लाउड्स पर बायां क्लिक करें। ये टाइप मेन्यू है। यहाँ ब्लेंडर की तरफ से सपोर्टेड तमाम टेक्सचर्स दर्ज हैं। वुड, वोक्सल डेटा, वोरोनॉय वगैरह। टेक्सचर के किसी भी किस्म को मुंतखब करने के लिए इस पर बायां क्लिक करें। अभी के लिए क्लाउड्स टेक्सचर रखता हूं। ये टेक्सचर प्रीव्यू विंडो है। यहाँ 3 डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। टेक्सचर डिफ़ॉल्ट तौर पर यह डिस्प्ले हमेशा मुंतखब रहता है। मटेरियल पर बायां क्लिक करें। यह मटेरियल पर टेक्सचर का प्रीव्यू जाहिर करता है। बोथ पर बायां क्लिक करें। जैसा कि नाम से पता चलता है, अब दोनों टेक्सचर और मटेरियल डिस्प्ले साथ साथ जाहिर हैं। शो अल्फा पर बायां क्लिक करें। अब टेक्सचर ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ हो गया है। ये शीशे और पानी जैसे मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल होता है। अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं। शो अल्फा पर फिर से बायां क्लिक करें। अगली सेटिंग इन्फ्लुएंस है। यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो टेक्सचर को मटेरियल के 4 अहम इलाकों में असर डालने में मदद करते हैं। डिफ्यूज, शेडिंग, स्पेक्युलर और जियोमेट्री। डिफ़ॉल्ट तौर पर डिफ्यूज के अंदर कलर फ़आल है। कलर बार के बाएं तरफ चेक बॉक्स पर बायां क्लिक करें। कलर अब गैर फ़आल हो गया है। टेक्सचर कलर मटेरियल डिफ्यूज के कलर को अब मुतासिर नहीं कर रहा है। जियोमेट्री पर जाएं। नॉर्मल के आगे चेक बॉक्स पर बायां क्लिक करें। अब टेक्सचर का नॉर्मल मटेरियल की जियोमेट्री को मुतासिर करता है। आप नताइज प्रीव्यू विंडो पर देख सकते हैं। प्रीव्यू स्फीयर के ऊपर हर तरफ बादल छोटे उभार के तौर पर फैल गए हैं। ब्लेंड कंट्रोल करता है कि टेक्सचर मटेरियल के साथ कैसे मिलता है। डिफ़ॉल्ट तौर पर यह मिक्स मुकर्रर है। मिक्स पर बायां क्लिक करें। ये मेन्यू ब्लेंडर की तरफ से सपोर्टेड तमाम टेक्सचर ब्लेंडर अक़साम की फहरिस्त देता है। क्या आप RGB टू इंटेंसिटी के नीचे ये पिंक कलर बार देख सकते हैं? ये डिफ़ॉल्ट टेक्सचर कलर है। अभी ये मटेरियल के रंग को मुतासिर नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इन्फ्लुएंस के नीचे कलर ऑप्शन को गैर फ़आल कर दिया है। पिंक कलर पर बायां क्लिक करें। एक कलर मेन्यू जाहिर होता है। यहाँ हम अपने टेक्सचर के लिए कोई भी रंग मुंतखब कर सकते हैं। अभी के लिए ये पिंक छोड़ दें
क्योंकि हम टेक्सचर कलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बम्प मैपिंग तयन करता है कि किस तरह टेक्सचर का नॉर्मल मटेरियल की ज्योमेट्री को मुतासिर करता है। बम्प मैपिंग के लिए मौजूदा तरीका डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट पर बायां क्लिक करें। ये मेन्यू बम्प मैपिंग के मुख्तलिफ तरीकों की फहरिस्त देता है। बेस्ट क्वालिटी, डिफ़ॉल्ट, कंपैटिबल और ओरिजिनल। कंपैटिबल पर बायां क्लिक करें। बम्प इन्फ्लुएंस बढ़ता है। अगली सेटिंग क्लाउड्स है। यहाँ क्लाउड्स टेक्सचर के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ग्रे स्केल टेक्सचर को ग्रे स्केल मोड में जाहिर करता है। कलर पर बायां क्लिक करें। अब प्रीव्यू विंडो में टेक्सचर रंगों के मुरक्कब में जाहिर होता है, लेकिन रंग मटेरियल पर कोई असर नहीं डालता। नॉइज क्लाउड्स टेक्सचर की डिफॉर्मेशन यानी हैयत में तब्दीली का तयन करता है। सॉफ्ट नॉइज डिफॉल्ट डिफॉर्मेशन है। हार्ड पर बायां क्लिक करें। अब प्रीव्यू विंडो क्लाउड्स टेक्सचर में गाढ़े सियाह हलकों को जाहिर करता है। इसी वक्त मटेरियल के ऊपर उभार गहरे हो जाते हैं। ये हार्ड नॉइज है। बेसिस क्लाउड्स टेक्सचर में नॉइज की बुनियाद या जरिया है। ब्लेंडर ओरिजिनल पर बायां क्लिक करें। यहां नॉइज बेसिस मेन्यू है। ये ब्लेंडर में तमाम सपोर्टेड नॉइज बेसिस की एक फहरिस्त जाहिर करता है। वॉर्नॉय क्रैकल पर बायां क्लिक करें। आप प्रीव्यू विंडो में तब्दीली देख सकते हैं। तो इस तरह नॉइज बेसिस क्लाउड्स टेक्सचर को मुतासिर करता है। क्लाउड्स टेक्सचर में साइज, नाबला और डेप्थ कंट्रोल नॉइज की खसूसियात हैं। प्रॉपर्टीज पैनल के सबसे ऊपरी रो के आखिरी दो आइकन पार्टिकल्स और फिजिक्स हैं। इन्हें ज्यादा एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में देखेंगे जब हम अपने एनिमेशन में पार्टिकल्स और फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। 3D व्यू पर जाएं। लैंप मुंतखब करने के लिए दायां क्लिक करें। नोट करें कि प्रॉपर्टीज पैनल के ऊपरी रो के आइकन्स अब कैसे तब्दील हो गए हैं। कुछ आइकन्स बदल गए हैं जबकि कुछ हट गए हैं। 3D व्यू में कैमरा पर दायां क्लिक करें। फिर से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज पैनल के सबसे ऊपरी रो के आइकन्स कैसे तब्दील हो गए हैं। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज विंडो के टूल्स मुतहरक हैं और 3D व्यू में फ़आल ऑब्जेक्ट की किस्म पर इन्हिसार करते हैं। इसी के साथ प्रॉपर्टीज विंडो पर हमारा ट्यूटोरियल खत्म होता है। अब आप आगे जा सकते हैं और एक नई फाइल बना सकते हैं। क्यूब में क्लाउड्स टेक्सचर शामिल करें और क्लाउड्स नॉइज के साइज, नाबला और डेप्थ इस्तेमाल करें। ये प्रोजेक्ट MHRD हुकूमत हिंद के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत करदा है। इस पर मजीद मालूमात इन वेबसाइटों पर दस्तयाब हैं: oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती है। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं इनको सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।